Welcome to the Emerging Professional at the Coffee Conference Show, powered by the Emerging India Forum, TIF, and a tech partner, Prime Infotech Solution. Theme is Mastering Pharma Inside Mankind's Growth. We have with us Abhay Kumar Srivastav, Senior Vice President of Operations at Mankind Pharma Limited, a powerhouse who has spent over 2 decades driving transformative growth in the pharmaceutical, agri-tech, and FMCG sectors. Known for his strategic vision, operational excellence, and forward thinking leadership, Abhay has been the backbone behind Mankind's pharma sustainable growth and digitization efforts. From managing large scale operations to fostering innovation, his journey is a masterclass in leading with purpose. So, Abhayji, welcome to today's coffee conversation. Yeah, thank you so much, Amirji, and thanks TIF to invite me. And what an impressive introduction you have given. Thanks for that introduction. मेरे को Uh, नौकरी जल्दी दोबारा मिलेगा मतलब बहुत जल्दी मेरे को दूसरा नौकरी भी मिल सकता है the kind of in या the kind आराम से यस of काफी स्पीकर्स का बहुत इनका ये बूस्टर्स मिला है इंडिया वेज जो डिवाइन जैसा दिखाता है करता है तो गुड सो लेट मी एक्सप्लेन यू आपके लिए सरप्राइजेस भी है द कॉफी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स यानी अभी मेन कॉफी प्रोफेशनल पर्सनल जर्नी एंड अ रैपिड फायर राउंड द फन राउंड फॉर विच आपको विटी फन एंड क्विक रहना पड़ेगा एंड हियर्स अ मोटिवेशन द गिफ्ट तो मैं आपके लिए मोटिवेशन ही यूज करूंगा which will be autographed and sent to you, sir. yeah, thanks so much. Yeah. So, friends, I'm Lion Amir Virani, host at Coffee Conversation and a legal tech evangelist at Prime Infotech Solution, author of 15 books. We help law firms, corporate legal, startup SMEs with world-class technology and software licensing and tech training solutions. So, Abhay ji, आपके 20 years की journey, how has it been? आपको ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मेरे काले बालों को देख करके इसको मैं कलर करता हूँ आई हैव गॉट 35 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मा सो सो it happens actually yeah so 35 years of journey was like first 10 years was like exploring what pharma is all about. Next 10 years was real learning and skill development, and uh, the other 10 years was like applying, and now 5 years I like I'm trying to like transform my business through the learning which I have taken from the other industry. तो ऐसा मेरा रहा है कि पहले 10 साल में तो सिर्फ नौकरी करना सीखा है, उसके अगले 10 साल में मैंने सीखा है कि भाई फार्मा में क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उसके अगले 10 साल में उसको अप्लाई किया है, और पिछले 5 साल में जो भी सीखा है और जो भी स्किल किया है उसको यूज कर रहा हूँ फार्मा को ट्रांसफॉर्म करने की बाय टेकिंग लर्निंग फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री. सो ये 35 years का जर्नी है मेरा. Beautiful. Okay. So, can you share a time when आपको navigate करना पड़ा major operational crisis and how did you navigate your turn it around? So I think uh, during COVID, actually, that was a very difficult time, and for 2 days we were like totally confused, uh, like what is going to happen and how things will like move on. And I remember that suddenly I got a WhatsApp message that from my managing directors that let's connect on Zoom. Actually, at that time we were using Zoom, and then we migrated to Microsoft Team. And in that meeting, what our managing directors told us that we need to be back into we need to be back in our operations, because होगा क्या कि नहीं तो 2-3 साल के बाद में तो दवाइयाँ ही खत्म हो जाएंगी for the patient. And for the first time we realized that yeah, this is something which we should like start thinking, but we were also very afraid about the COVID-19, and it was a black box for us. उसके बाद में हुआ क्या है, फिर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच हुआ विद ऑल द फार्मा इंडस्ट्रीज. इनिशियली बिजनेस
uh, I think the government of India was also very मतलब वो भी डरे हुए थे कि क्या चीज है करके. They were also very scared. Then suddenly what happened when we told them that after 6 or 8 months there will be lack of medicine, so please allow us to start our plants. नहीं तो पहले उनको लग रहा था ये लोग बिजनेस के चक्कर में ये लोग कर रहे हैं. फिर बाद में उनको भी ये बात समझ में आया कि नहीं यार ये लोग बात तो सही कह रहे हैं. तो देन व्हाट हैपेंड, दे अलाउड अस. सो व्हेन दे अलाउड अस, so what happened, we started our operations. Then we had a challenge that how to motivate people to come to the plant. That was the first challenge which I had. After that, how to bring the materials into our factory, then how to like get all the consumables and ancillary items. And slowly we kept on coming to the government requesting them कि भाई ये भी essential है, अगर भाई मेरे को ब्रिकेट ही नहीं मिलेगा तो मैं बॉयलर कैसे चलाऊंगा. Very good. तभी गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, धीरे 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 करते उन्होंने जो है काफी हेल्प किया. एंड दैट वाज द वेरी challenging time for us, and somehow we steered. And you will be very surprised to know that the Mankind was the only pharma company which had a positive growth even during COVID. And we were able to like run our plant very effectively, though we had some challenges with respect to the different government rules and regulations and the precautions, the proactive precautions which we were taking. But I tell you, uh, uh, we were able to like cope up with that pressure and challenge. That's beautiful, sir. So, Abhijit, what's the strategy for leading large teams across different domains while ensuring operational efficiency? I would say that my सबसे पहला ना तो we should like respect one premise कि हम लोग जानवर नहीं है, हम लोग इंसान है. और जबरदस्ती किसी इंसान को ना उंगली नहीं करना चाहिए. So they are intelligent people. They will learn. They will like run the plant efficiently. You should like first respect that. And if there are any exception, then only you put your nose in. Otherwise तो कुछ नहीं है. तो ये मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि मेरे पास 32 प्लांट है, 32 प्लांट्स हैं, 32 प्लांट. तो वो बोलते हैं आप ये प्लांट चलाते कैसे हो अभय साहब. तो मैं बोलता यार मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ना एक चीज को कॉपी करता हूँ. मैंने क्या, मैं बोलता हूँ कि ना मैं हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ जाता हूँ और वो हेलीकॉप्टर को एक हाइट पर लेकर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई सब कुछ सही चल रहा है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ. तो फर्स्ट थिंग, आई मॉनिटर बट आई डोंट कंट्रोल. इट इज नॉट दैट आई एम नॉट मॉनिटरिंग देम, आई एम मॉनिटरिंग बट आई एम नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल देम. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई डू. मैं फिर देखता हूँ कि ऊपर से अगर सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों फालतू में उंगली करना, सब कुछ चलने दो. फिर मैं देखता हूँ एक जगह भीड़ इकट्ठा हो रही है तो मैं हेलीकॉप्टर को नीचे लेकर के आता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है. फिर मेरे को लगता है कि अगर ये सेल्फ मैनेज है तो आई विल सिंपली गिव ए कॉल टू द प्लांट मैनेजर, यार थोड़ा देख लेना क्या हो रहा है, भीड़ लगी हुई है. तो ही से ना नहीं नहीं कुछ नहीं है सर, वो ऐसे ही थोड़ा सा हो गया है एंड आई थिंक आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड आई विल टेक माय हेलीकॉप्टर अगेन टू द हाइट and I keep on looking at all the 32 plant. So there are a lot of digital tools which help me. So I use a lot of Tableau boards to monitor such kind of thing. So monitor है, not control. और if this भीड़ is like persistent, बहुत देर तक वहां पर जाम लगा हुआ है, then I put my हेलीकॉप्टर डाउन, वहां उतार देता हूं और मैं जो है आई गो टू दैट प्लांट, सिट देयर फॉर 1 2 3 days, ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेकेंड पॉइंट है कि आपको वहां पर जाना है और आपको उस माहौल को भी देखना है जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ है. सिर्फ एक्सीडेंट ये नहीं यहाँ से फोन करे भाई एक्सीडेंट क्यों हो गया, तुम क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, नहीं. उस माहौल में जाना है, उस माहौल में बैठना है और सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं देखना है, आपको देखना है कि वो कौन से ऐसे सिचुएशन और सिनेरियो से जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुए. एंड इफ यू स्टार्ट लाइक solving their problems, and definitely the things will like comes in line and he will be always aligned to you. ये सेकंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि you always create a learning environment in the organization. If you keep a learning environment, there will always be a problem solving people sitting all across the organization and they are doing a lot of problem solving. So that is the
थर्ड थिंग विच आई ट्राई टू डू। उसके बाद में तो आपको सिर्फ आना है, चाय पीना है, उनकी 3 स्लाइड देखनी है। पहला कि उनकी केपीआई कैसे चल रहे हैं, दूसरा उनके अचीवमेंट क्या है, बिकॉज पीपल लव टू टेल अबाउट देयर अचीवमेंट, और थर्ड उनके कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई उनको क्या चीज अगर सॉल्व किया जाए तो दे परफॉर्म बेटर। वो मेरा होमवर्क हो जाता है, वो लेकर के मैं चला जाता हूँ, एंड आई ट्राई टू कीप ऑन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम एंड रिमोटली मॉनिटरिंग देम। ब्यूटीफुल सर, इम्प्रेसिव। ये थ्री एक्शंस प्लान अपने जो बताया, दैट इज वेरी यस। इम्प्रेसिव। जिस तरह से यस, क्या, मॉनिटर डोंट इंटरफियर, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। यू हैव स्टार्टेड एंड हेलीकॉप्टर का एनालॉजी लेके कि भाई यू हम्म। एक ऊपर से देख रहे हैं ओवरव्यू, दैट इज व्हाट ये ग्रेट लीडर इज ऑल अबाउट। सो ये आज का कॉन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट ऑपरेशंस एंड बिल्डिंग टीम अंडर अ गुड लीडर। सो अभय जी, ये तो आपका शुरुआत हो गया, अभी अपन कॉन्वर्सेशन में और डाइव करते हैं। व्हाट्स वन ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज यू हैव इंट्रोड्यूस इन फार्मा ऑपरेशंस दैट यू आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ? If you ask me, I am one of the person. I'm not taking all the credit, but I am one of the person who is a very strong believer of operational excellence. जो बोलते हैं ना लीन सिक्स सिग्मा के जो प्रिंसिपल्स को फार्मा में लेकर के आना, तो आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर इन दैट। फार्मा में अदरवाइज ना, फार्मा में क्या चल रहा था कि अगर रेनबैक्सी रशिया जा रहा था तो पूरी कंपनियां रशिया जा रही थी। डीआरएल जब यूएस में एएनडीए फाइल कर रहा था तो एवरीबडी वाज रनिंग टू यूएस। तो सब लोग ना एक दूसरे को कॉपी कैट कर रहे थे, ठीक है। एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एंड लुकिंग व्हाट द अदर कंपनी आर डूइंग, एंड दे वर लाइक जस्ट ट्राइंग टू कॉपी दैट। मैं थोड़ा सा इससे उतना आई वाज लाइक नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज फार्मा में ना जो लोग भूल जाते हैं कि कल्चर एंड करेक्टर आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। You can copy the machine, you can copy their SOP, you can copy the formula, you can copy their way of working, but one thing which you cannot copy is the culture of the company. That is very important. And the second thing is the character of the people, because you are dealing with the life। आपके मेडिसिन बना रहे और आपसे कुछ गलती हो गया और आपसे कुछ गलत हो गया और आपने उसको छुपा दिया, तो कितने लोग मरेंगे आपको खुद को नहीं पता है। तो करेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने दो काम किया। पहला तो ट्रांसपेरेंसी करा, और मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, आपसे गलती हो जाए, आपसे कत्ल हो जाए, आपसे मर्डर हो जाए, आपको ईमानदारी से मेरे पास आना है और बोलना है कि सर मुझसे ये कत्ल हो गया है, ये लो चक्कू और तुम पकड़ो और तुम्हारा काम जाने, और तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। So that has created a lot of transparency. So people are like, sometimes we clap for the person who comes and tell us that this was a problem. So that is how I build character, and character is only coming through fearlessness। और आपको कोई एक्शन नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द थर्ड थिंग इज दैट करेक्टर के तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल्चर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कल्चर में जो है लीन सिक्स सिग्मा के प्रिंसिपल्स लिए। देयर आर 29 प्रिंसिपल विच वी फॉलो, और सब लड़कों को उसमें ट्रेनिंग देना शुरू करिए। तीन चार चीजें हुई, एक लर्निंग कल्चर बना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, करते करते वो एक ऐसा चीज बन गया कि कोई दूसरी कंपनी मैनकाइंड को कॉपी ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करेक्टर और जो कल्चर बिल्ड कर दिया है मैनकाइंड में, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय एनीवन। तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस और एक ट्रांसपेरेंसी और जो फियरफुलनेस वाला जो मेन पॉइंट है, ये दो चीज मेरा एक बहुत मतलब एक मैं सोचता हूँ कि जिसका मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, और वही मैंने एक नई चीज जो है फार्मा में लाई है। बहुत चैलेंज हुए शुरुआत में, क्योंकि क्वालिटी हमेशा लीन सिक्स सिग्मा और इन सब से उतने कंफर्टेबल नहीं होते थे, बट समहाउ with a persistent क्या बोल सकते हैं engagement with the quality department, we are able to convince them। and this is not only at Mankind but also at USB, my last organization। तो ये मेरा दो दो कंपनियों से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उससे मेरे को काफी फायदे हुए हैं। वाह, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभय जी।
How is Mankind Pharma integrating sustainability into its operations under your leadership? Uh, Sustainability, I think that is the future, right? एंड अगर आप मान के चलते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात होती थी, तो पीपल यूज टू से दैट यू शुड हैव अ कॉस्ट लीडरशिप, यू शुड हैव अ क्वालिटी लीडरशिप, यू शुड हैव अ डिफरेंशिएटर, एंड यू शुड बी ऑल्सो बी लाइक फोकसिंग ऑन ए मतलब एक सेगमेंटेशन या एक सेगमेंट पे फोकस करो. लेकिन lately आपका सस्टेनेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक बहुत बड़ा वो एक्टर बन गया है, एंड मैनकाइंड हैज लाइक रिकॉग्नाइज्ड. एंड आई थिंक देयर इज वन माइलस्टोन व्हिच आई वांट टू शेयर व्हिच विल गिव यू, अदरवाइज तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, दैट वी हैव बिकम प्लास्टिक न्यूट्रल इन 2024. तो मैनकाइंड फार्मा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होकर के ये प्लास्टिक न्यूट्रल हो गई है, और 2024 में, तो दैट इज शोइंग आवर कमिटमेंट टुवर्ड द सस्टेनेबिलिटी. देन सस्टेनेबिलिटी, there are two things. The one part is like the governance part, and one part is like the reporting part, and the third is that what is happening on the ground is equally important. How your last person in the supply chain behaving to that. So our focus is like there right now. Though we have declared that by 2030 we will be like carbon neutral by 2030 from scope 1 and scope 2 of ये scope 3 की मैपिंग हम लोग ने शुरू कर दी है कि भाई कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं. आज की डेट में हम लोग ने I'm like I'm not able to figure out the exact size of the solar farm, but that solar farm is good enough to power two factory right now. Now we are looking up putting up a solar farm in Himachal and in Uttarakhand. So this is something which we are like figuring it out. ये नहीं कि सिर्फ हमने 2030 का टारगेट ले लिया, लेकिन एक एग्रेसिव एक्शन प्लान है हमारा टू मेन कि हम लोग जो है कि सस्टेनेबल हो जाएं बाय 2030. और तो मतलब देयर इज ऑलरेडी अ रोड मैप, एंड वी आई एम लाइक कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू अचीव दैट. Yeah. So, Abhijit, at Mankind Pharma, you oversee a vast range from formulations to agri-tech. How do you balance such diverse operations? ये हम जानना चाहेंगे. यस, वेरी गुड. तो जब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ कि मदर ऑफ साइंस जो है ना कॉमन सेंस है. वो तो ऐसा आज तो मदर ऑफ कॉमन. साइंस जो है ना कॉमन सेंस है, और मैंने बहुत लेटली रियलाइज किया कि सब जगह पे ये कॉमन सेंस जो है वो प्रिवेल करता है. ठीक है. और पहले मेरे को लगता था कि फार्मा ही बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, लेकिन जब मैं एग्रीटेक में देखा तो मुझको पता चला कि एग्रीटेक फार्मा से ज्यादा रेगुलेटेड है. फिर मेरे को लगा कि भाई हमारा यहाँ पर बहुत साइंस बेस्ड है, तो हमने बोला भैया साइंस बेस्ड तो बहुत कुछ है. फिर पता चला टेक बेस्ड है, तो पता चला सॉफ्टवेयर हमसे ज़्यादा टेक बेस्ड है. पता चला कि हम लोग की मेंटेनेंस और इक्विपमेंट ज़्यादा हम लोग ढंग से मेंटेन करते हैं. जब हमने फिर पता चला कि जो डीसीजीए है उनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस को लेकर के. तो फिर बाद में पता चला कि हम लोग सारी इंडस्ट्रीज आपस में इंटर रिलेटेड है, और कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये करने के लिए. और बस एक क्या बोलते हैं ना, एक वोकैबलरी चेंज हो जाता है, या फिर एक जार्गन होता है ना वो चेंज हो जाता है. हम जिसको क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्लीन एरिया है, उसको फूड इंडस्ट्री हाइजीन एरिया बोलती है. और ये ऐसे करके ये सिर्फ जार्गन का एक खेल है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस जार्गन, एंड इफ यू आर एबल टू फिगर आउट द कॉमन सेंस एंड साइंस बिहाइंड इट, then it is like immaterial that what kind of industry you are in. Beautiful. लेकिन एक So, बात है, Abhijit, सॉरी सॉरी मैं इसको एक, लेकिन ना ये एक्सपोजर मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे जो दो बॉस थे वो आईआईटी के थे, तो उन्होंने मेरे को हमेशा एक चीज सिखाया, भाई ना दूसरे इंडस्ट्री से सीखो.
और वो इंडस्ट्री से सीखने को जब मैं गया तब मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ यार सारे तो बराबर ही है. तो so that is how I figured this out. Beautiful, sir. So let's continue. Uh, how do you see AI and digitalization reshaping pharmaceutical operations in the next 5 years? Actually, no, the AI is the flavor. अभी जो मतलब कि 2025 ऑनवर्ड जो है एआई सब जगह एआई चल रहा है. There are a lot of use cases in pharma with the use of AI, like, but the people are very cautious in pharma to use the AI, especially with respect to three aspects. कि उसको कितना फाइन ट्रेन किया जाए या फाइन ट्यून किया जाए कि भाई उसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए कि एवरी टाइम इट इज लाइक गिविंग यू एन एक्यूरेट आई थिंक आंसर और सेम आंसर. Correct. And how much that is like I would say repeatable कि भाई हमने वो प्रॉम्प्ट डाला तो वो एआई वही काम बार बार करेगा. कुछ यूज केस में ऐसा हुआ है जहां पर सिर्फ एआई ने आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए यूज करना है, वहां पर काफी यूज केस हो गए हैं और आई थिंक दे आर बीन अडॉप्टेड वेरी वेल इन फार्मा, right? Report writing and other stuff, people are wait and watching, so they are also waiting for a lot of guidance from USFDA and other stuff. They have taken out a lot of white papers. They have given us some draft guidelines as well to different regulatory agencies. But still, the way the other industries are adopting AI, we are, I think, behind the curve, learning curve. Point number one. Point number two is that uh, we are slowly adopting, but wherever we are adopting, the industry is getting benefited out of it. Wow. So coming to next question, what actions are being taken for ESG in the pharmaceutical industry? Uh, it's a very good question, actually, and I will use your forum to express one of my viewpoints. The ESG means scope one and scope two, and everything is like well under control. The other things like the social and the governance part is also under control. What is not under control is the scope three, because scope three is very big. राइट. तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है. एंड व्हाट इन सेवरल फोरम आई हैव बीन लाइक गोइंग एंड रिक्वेस्टिंग द डिफरेंट कंपनीज टू कम एंड कोलैबोरेट टुगेदर. मैं चाहता हूँ सारी कंपनी कोलैबोरेट कर दे क्योंकि हम सबके जो वेंडर्स हैं वो कॉमन है. करेक्ट. और हम लोग वो कोलैबोरेट कर ले और फिर इकोवडेस या इन सबको हायर करें और फिर इनसे बोले कि भैया इनके सबको आप जो है इनका असेसमेंट करो और ये जो कोलैबोरेटेड इंडस्ट्री है इनके साथ शेयर करो सो दैट कि हमको थोड़ा सा स्कोप 3 का जो है मैपिंग बराबर हो जाए और हम लोग जो है बाकी सारी इंडस्ट्रीज की तरह हो जाए. तो एक्चुअली देयर इज वन बिग प्रॉब्लम विद फार्मा इज दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल इन इन लाइक कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी है उसके ना वेंडर्स 15-20 ही होते हैं और हमारे तो 800 से 1000 तो एसकेयूज होते हैं. या और कम से कम 600-700 प्रोडक्ट होते हैं और उनमें जो है हर एक में 10 से 20 मटेरियल जाते हैं. अब आप सोचो मेरे को कितना वास्ट जो है मैपिंग करना पड़ेगा जो मेरे वेंडर्स का और उनको देखना पड़ेगा. So that part जो है ना, that part is a big gap in pharma, and it's also very costly to map them actually. So that's the reason I'm requesting each and every pharma company to collaborate and start doing that. अदरवाइज ईएसजी में जो है रिपोर्ट बनाने में तो सब आते हैं, अच्छा अच्छा रिपोर्ट बना करके वो लोग अपलोड कर देता है. बट जो एक्शन वाला जो पार्ट है वहां पर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक फोरम क्रिएट करके लोगों को स्कोप 3 को मॉनिटर करना चाहिए. So Abhijit, how has the leadership style evolved over your 35 years journey in the pharmaceutical industry?
Um, so my understanding of leadership has changed year on year. And to be very honest with you, I'm still like figuring it out what leadership means. सो आई एम नॉट लाइक मैं बोला ना कि भाई ऐसा मैं बोल दूं कि लीडरशिप के विषय में मेरे को पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है. So leadership, what lately I realized that leadership is more about who you are, what you are, and there are certain traits which are very suitable to your personality is also equally important. तो मैं आपको ना दो बातें बताता हूँ कि मेरा जो लीडरशिप स्टाइल है कि यू स्टार्ट मेकिंग मोर लीडर बाय मेंटरिंग. You start mentoring. So one of the biggest KPI which I give to my plant manager or I have as a KPI is to mentor at least two people from the plant. हर एक प्लांट से दो दो आदमी को मैं मेंटर करूंगा. और ये वन स्टेप लेवल, एक स्टेप नीचे होता है. जैसे प्लांट मैनेजर को मैं नहीं मेंटर करता हूँ, मैं उनके प्रोडक्शन हेड्स को देखता हूँ. प्लांट मैनेजर प्रोडक्शन हेड के एक नीचे को देखते हैं और ये आई थिंक सीनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव तक जाता है. सो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटर टू पर्सन एंड देयर स्कोर डिपेंड्स अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ स्कोर दे हैव गॉट इन पीएमएस. एक तो ये बात है. दूसरा जो ये है कि जो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट आप बनाते हैं. जब आप लर्निंग बनाते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एंड लीडरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. करेक्ट. वो पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिनको हम लोग येलो बेल्ट बोलते हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, फिर उसके बाद में उससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम उसको ब्लैक बेल्ट करते हैं. जनरली ये प्रॉब्लम रिलेटेड या प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. मास्टर ब्लैक बेल्ट होते हैं जो कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं. तो आपको जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आई हैव गॉट नियरली 750 प्लस बेल्ट्स. तो आप सोचो कि 750 लोग एक प्रॉब्लम हर साल अगर सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बची कहाँ पर भाई आपकी. So this is how you are like gaining the, I would say, leadership, correct? And leadership का एक क्या होता है कि ना लीडरशिप इज मोर ऑफ ए स्केलर. उसको ना थोड़ा सा वेक्टर में डालने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि आपको कॉस्ट लीडरशिप लेनी है, आपको क्वालिटी लीडरशिप लेनी है, आपको डिफरेंशिएशन में लीडरशिप लेनी है. तो फिर क्या हो जाता है, आपको एचएस में लीडरशिप लेनी है तो फिर क्या हो जाता है, जो डिफरेंट टीम्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर लीडरशिप की तरफ भागती हैं. दैट इज रियल लीडरशिप. करेक्ट. मेंटरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसको स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना, उसको एक डायरेक्शन दे देना, उसको ही मैं लीडरशिप मानता हूं एज ऑन डेट. Wow. Beautiful. So giving direction is very much needed. And जो आप ये करते हैं कि mentoring, leadership and direction. यस. Beautiful. 3 lines में. Okay. My last question आपके लिए रहेगा. There will be I want to plan a panel discussion between you and another thought leader on the role of leadership. जैसे आपने बताया mentoring, फिर अपना second उसको ये प्रॉब्लम direction, सॉल्विंग है एंड उसको problem स्केलर solving, को, हाँ स्केलर को direction, वेक्टर. yes, ओके ना. क्या होता है ना, अगर आप लीडरशिप को एक डायरेक्शन नहीं देते हैं ना तो रडरलेस शिप हो जाता है. फिर वो रडरलेस शिप हो जाता है. यही क्या बोलते हैं ये टॉपिक पे वी वांट टू प्लान आउट एंड इट विल बी लाइक अ फायर चैट के जहाँ पे टू ये सीनियर्स आर कमिंग एंड विल लीड दिस कॉन्वर्सेशन. सो ये माय लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा. व्हाट advice would you give to young professionals entering the field of operations at a pharma company? ऑपरेशंस में आने के लिए आई वुड से वन थिंग विच आई एंजॉय इज लाइक यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड. लाइक आपको क्वालिटी भी आना चाहिए, आपको रेगुलेटरी भी आना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा एचआर का भी आना चाहिए, आपको थोड़ा सा ऑपरेशंस भी आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए. तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज कर रहे हो. एंड तो मेरे को ये हमेशा एक्साइट करता था. इट हैज ऑलवेज एक्साइटेड मी. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन and to come into operation. The second motivation was that
मेरा बिकॉज आई वाज लाइक मेरे को बहुत स्कॉलरशिप मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और स्कॉलरशिप मेरे कॉलेज से मिला, तो मेरे को लगा कि यार ऑपरेशन में जाना है, कुछ कंट्री को वापस देने का है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं इधर उधर मार्केटिंग में चला जाऊंगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो मैं ऑपरेशंस में आया। Operations is all about, I would say, uh, क्या बोल सकते हैं कि देर इज ऑलवेज अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैपन्स। बाकी सब में या तो आप कागज लिख रहे होते हैं या फिर आप कहानी सुना रहे होते तो मतलब यू आर बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर, but this is something which you cannot do in operations. You have to literally transform two gases into a solid when it comes to API, or you have to transform a liquid into a tablet, or a tablet into a liquid based on your process. I'm just giving you some examples. That there should be a transformation which should happen on your product. और वो हवाबाजी से आती नहीं है. You need to have right skill, right knowledge, and right understanding. एंड वन ऑफ द वे इज लाइक, तो ना कभी भी आप अपने आप को सप्रेस मत करो. आप हमेशा आप हमेशा आप हमेशा जो है ना सप्रेस नहीं करना है, आपको जो है हमेशा जो है एक्सप्रेस करना है. आपको सप्रेस नहीं करना है, आपको हमेशा एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेस करने के बाद आपको डिस्कस करना है. जब आप एक्सप्रेस करोगे तो आप एक ही अपनी बोले, हाँ मैंने पिछली कंपनी में ऐसा देखा था, पिछली कंपनी में ऐसा देखा था. सो सप्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस करना, लेकिन उसके बाद में आपको डिस्कस करने का है. दैट उसके एम्पथाइज करना है, क्वालिटी वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, थोड़ा सा अपने को समझना चाहिए, डिस्कस करने का, और उसके बाद में इम्प्रेस करने का. तो अपने को आपको सप्रेस नहीं करने का, हमेशा एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेस करते करते डिस्कस करने का, डिस्कस करने के बाद सीख जाने के बाद दूसरे को बता करके उसको इम्प्रेस करने का. तो दिस इज अ मतलब प्योर फुल जर्नी ऑन ऑपरेशंस एक्चुअली. And you should be like knowing each and every aspect of the operations, and this is really very exciting, and I will always. वो अभी क्या हो गया ना कि फार्मा में सब लोगों को पूछो कहाँ जाना चाहते हो, तो बोलते हैं हम आरए में जाना चाहते हैं, हम क्यूए में जाना चाहते हैं, हम आर&डी में जाना चाहते हैं, ऑपरेशंस में कोई आना नहीं चाहता. और फिर मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि भाई तुम बाकी सब में जाएगा तो तुम जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा. आपको ऑपरेशंस में आएंगे तो आप सीनियर पोजीशन पे जाएंगे, या फिर आप मार्केटिंग बनेंगे तो आप सीनियर पोजीशन पे जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है. आप लोग इसको प्लीज कंसिडर करो और ऑपरेशंस की तरफ आओ. Wow, beautiful. Okay, let's go to the next round, sir, and understand Abhayji as a person. Tell us about your family and your formative years. Uh, so um, um, so I come from a very humble family. So my father was in Air Force, and unfortunately, I lost him 10 years back. My mother was a school teacher, and she is still an active uh, uh, person in a school which we run. So we have a school in Agra. So she stays in Agra. Then my wife, she's a housewife, and we stay in Noida. My son Ayush is in Gurgaon, and my daughter Abhilasha is in Pune, and people ask me, so where do you live? And I say that, so I'm Abhay Kumar Srivastav, and my address is 3C Indigo or Air India, because I keep on traveling a lot. So that is something about me. And I did my class 10th and class 12th from Kendriya Vidyalaya, number 1, Agra. And after that, I got selected in BIT Mesra, and I did my B Farm from there. And after that, I was like in job for nearly 3 years. Then I did my MBA from I would say Lal Bahadur Sastri Institute of Management and Development Studies. And I kept on growing slowly in my career with different companies like Unichem, Aristo, Alchem, USV, Sun, and now to Mankind. Um, there is one good thing which happened during COVID, and I want everybody to listen to this very carefully. Is that I started because there was a lot of free time, so I started
online courses, and now it is part and parcel of my uh, career. That so I did my 1 year CEO course from IIM Lucknow. Currently, I am like doing my strategic management classes from IIM Lucknow. Before that, 1 year I was with IIM Ahmedabad. So I kept my books and pen and pencil on. So this is how I'm moving, and I will request everyone to be like doing one or the other. I would say management course or any course which they like. So this is how I have been like transforming and forming. And there is one very interesting aspect also. मेरे 10वीं में 63% नंबर थे, 12वीं में 75% नंबर थे, बी फार्म में जो है मैं क्या बोलूँ, मेरे 87.6% नंबर थे। और जब मैं आई एम लखनऊ सबसे लास्ट जो मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ उसमें मैंने अपने बैच को टॉप किया था। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे ना इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये अपने को ना एवरी डे यू शुड बी लाइक इम्प्रूविंग देन योर yesterday, so that is also very important. अदरवाइज आई वाज वेरी, बोलते हैं ना एक लोअर मिडिल क्लास से बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं। Wow. Okay, Abhiji. When you're not optimizing pharma plants, what's your go-to way to unwind? Actually, unwind, I like traveling a lot, so I keep on traveling to different places. And my profession also forces me, so I use uh, times Talking in to the plan. evening, in the morning to like explore the local cuisine or any local tourist place. So that is one of the way which through which I unwind. And I would also say that ऑन सैटरडेज एंड संडे किसी की सुनता नहीं, मस्त सोता हूँ मैं। तो मेरे को सोना भी बहुत पसंद है। अदरवाइज आई कीप ऑन मूविंग, सो आई ट्राई टू रिवाइंड माई सेल्फ बाई हैविंग अ गुड स्लीप एटलीस्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। एंड आई हिट जिम ऑल्सो ड्यूरिंग these 2 days at least for 2 hours. So this is how I rewind. Wow. So you're leading me to my next question. Thank you for that. आपके from your travelogue, India में which is the favorite place and why? उसके cuisine related and उसके क्या बोलते हैं ये क्या place Surroundings, yeah, surroundings yeah. places, ये इंडिया का So हो गया। देन वी right, गो so टू इंटरनेशनल, सब में डिवाइड करो दो पार्ट में। सिर्फ आपके ट्रैवल की लगता है कि एक बुक भी आपको लिखना चाहिए, योर ट्रैवल एक्सपीरियंस, बिकॉज लोकल क्यूजीन, मार्केट्स, पीपल, कल्चर एंड ये सारी चीज़ें आती है। फिर इंटरनेशनल जाते हैं। इंटरनेशनल में आपके फेवरेट प्लेस रिस्पेक्ट टू फूड एंड कल्चर। गुड। सो इंडिया में जो मेरा ना अंडमान निकोबार इज अ फेवरेट प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई वाज लाइक नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतने साफ बीचेस भी पॉसिबल है। तो मेरे को वो बहुत बड़ा एक शौक लगा था जब मैं वहाँ पर गया था। और दूसरा ये था कि आई वुड से क्यूजीन में वहाँ पे जो फिश के जो आइटम्स हैं, आई एम लाइक ए वेजिटेरियन। आई डोंट लाइक लाइक रेड मीट, सो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ फिश एंड प्रॉन्स। सो तो एक तो मेरे लिए तो वो एकदम क्या होता है ना, पैराडाइज हो गया था। सो दैट्स द रीजन दैट मेरे को क्यूजीन भी अच्छा लगा। और जो हम लोग डिफरेंट आइलैंड्स में हॉप कर रहे थे और जो हम लोग ने फेरी लिया हुआ था, वो भी मेरे को जर्नी बहुत अच्छा लगा। और बहुत सीनिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे, और आप अपने से खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो और अपना एक खुद आई वुड से एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं अंडमान और निकोबार में। तो दैट वाज माय ये। इंटरनेशनली अगर आप पूछे कि भाई आपका जो सबसे अच्छा लगा, तो मेरे को जो है मैं मेरा यूके का एक विजिट था, और मैं जो है दो सिटी को गया था। एक तो स्टोनहेंज को गया था, एंड देन देयर इज आई एम लाइक मिसिंग द नेम ऑफ दैट सिटी, स्टार्ट विद आई स्टार्ट विद सी, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट नेम, बट जब मैं स्टोन हेज में गया था, और वो सिटी में दोनों में वो चीज़ कॉमन है एक्चुअली। तो हुआ क्या कि आई स्लोली रियलाइज्ड कि दैट कि
there was a religion even before Christianity, actually, and that religion was very similar to Hinduism. So that was something which stuck to me, because everywhere they were saying that this was a temple, this was a temple. The Roman games and Roman built this kind of temples, and so I was like a bit amused, and then I said, okay, if Roman came in, what was the ritual? So they said that the ritual was this, the ritual was this, and those rituals were very close to us. Though my wife had a lot of problem with the cuisine in London because she's a strict vegetarian, but somehow I was like able to manage that journey. From my perspective, UK was not a very great place for cuisine because हम लोग को सब कुछ गर्म अच्छा लगता, वो सब कुछ ठंडा खाते थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था. So that is, but yeah, but that was very interesting overseas. Otherwise there are many places, but that was something which I felt enlightening. Wow. So Abhijit, is there any hobby or skill people wouldn't expect you to have? So there is one skill which I have, and which I think 10 years back I realized, and that I started writing stories. Actually, I'm not a very, so since I came from a humble family and my English was also not very good, but I started writing stories. So every Sunday you will find one new story in LinkedIn, actually, and a lot of people follow that. And in that, I generally, what I do is that something which has happened in my life, I try to picture it out, and then I say that this is something which I have learned, and this is something which has helped me grow in my career, and this is something where I failed very miserably. सो आई हाईलाइट बोथ थिंग कि भाई जो मेरी ज़िंदगी में अच्छा हुआ वो भी बताता हूँ, और पूरी बेशर्मी के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ वो भी बताता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में सही नहीं गया। क्योंकि मेरा ऐसा भी मानना है कि भाई, अगर बोलते हैं ना, हम गिरे ज़माना सँभल गया, इफ लाइक मेरे गिरने से अगर ज़माना सँभलता है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। Wow. So Abhijit, are there any traditions or rituals at home that you hold close to your heart? मैं मतलब कि एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि मेरे घर में जो है ना, मेरा वाइफ जो है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। मैं, मेरे दोनों बच्चे स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन तो नहीं बोलूँगा, मैं तो खैर उतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन वो दोनों तो स्ट्रिक्ट है। तो हम लोगों को अगर कभी ऐसा मूड करता है खाने का, तो हमको आला कमान से एसएमएस करके परमिशन लेना पड़ता है कि वेदर वो हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो शी सेज कि अच्छा ठीक है, आप लोग खा सकते हो और नहीं खा सकते हो, बेस्ड ऑन द पंचांग एंड अदर स्टफ। Yeah. So that is one ritual which we follow. And the third is that once we reach our home, we have to take bath immediately. Otherwise, we are not allowed to like roam in and around in our house. तो आपको तुरंत जाना है, अंदर घुसना है, नहाना है, और कपड़े को वॉशिंग मशीन के अंदर डालना है, और उसके बाद में आप कहीं पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अलाउड है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, हमारे घर का ट्रेडिशन है। Wow, beautiful. Okay, let's become a little serious और उसके also. बाद एक और है, 15 मिनट का एक लेक्चर भी मिलता है वाइफ से कि यू शुड लाइक मूव टुवर्ड बिकमिंग एन वेजिटेरियन। Any books that have deeply influenced your leadership or personal growth? So actually, there are a lot of books actually. I would say um, it's Seven Habits, and मतलब कि मैं किसी एक बुक को नाम देना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि ना, मैं यूएसवी में था, यूएसबी में था, तो हुआ क्या कि मैं हमेशा 1 महीने में एक बार मेरे को यहाँ आना पड़ता था मुंबई, क्योंकि यूएसबी का हेड ऑफिस मुंबई में था। Mhm. और मैं हमेशा जाता था, 2 दिन जाता था, उसके बाद फिर आ जाता था, हर महीने का ये वो था। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, एक बुक खरीदते हैं मुंबई एयरपोर्ट से, उसको पूरी पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद में वो अगले महीने दूसरी बुक खरीदेंगे। और मैंने अपने आप को ना इंटरनली डिसिप्लिन कर दिया, भाई साहब 1 महीने के अंदर वो बुक खत्म करना है और दूसरा अगली बुक खरीदना है।
ऐसा मैंने करीबन करीबन आई थिंक 30-35 बुक्स मैंने ऐसा खरीदा है। उसके बाद में कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा मिस आउट हो गया, लेकिन वो 35 बुक्स भी बहुत थे मेरे लाइफ़ को चेंज करने का। और मैं बहुत आई वाज़ लाइक वेरी लकी टू बाय ये टोयोटा वे ऑफ टोयोटा वे ऑफ वर्किंग बुक था। आई एम लाइक इफ आई एम लाइक करेक्टली रिमेंबरिंग इट, आई एम नॉट श्योर। तो उसने मेरे को काफ़ी चेंज किया, और क्योंकि वो ऑपरेशन से बहुत क्लोज था, तो उसने मेरे को पूरा दिमाग खोला। फिर स्लोली फिर मैं बहुत सारी ऑपरेशनल चीज़ें लेता गया, और सडनली फिर क्या हो गया कि सेल्फ हेल्प बुक में आ गया। तो जो सेल्फ हेल्प बुक होती है, उसने मेरे को इंटरनली चेंज करना शुरू किया। और एक बहुत बड़ा रोल है इन बुक्स का मेरी लाइफ में। सो अभी भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन अब जो मेरे बुक्स पढ़ने का वो हो गया, वो जनरली सप्लाई चेन से रिलेटेड ज़्यादा हो गए। हाउ सप्लाई चेन इज़ लाइक चेंजिंग। ऊपर से अभी मैं इतना कोर्स कर रहा हूँ, तो उसमें होता है क्या है कि एक केस स्टडी काफ़ी होता है मेरे को 1 हफ्ते में क्लोज़ करना है, नहीं तो प्रोफ़ेसर में क्लास में बहुत बोलते हैं आप लोग केस स्टडी पढ़ कर के नहीं आए, केस स्टडी पढ़ कर के नहीं आए। तो आई ऑलवेज़ मेक ए पॉइंट दैट में कोई भी क्लास से पहले केस स्टडी को मैं पढ़ करके जाऊँ, एंड दैट इज़ गुड इनफ थिंग कि आप 3-4 दिन में उसको केस स्टडी को कंप्लीट कर लेते हो, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट उसको समझने की कोशिश करते हैं। Wow, beautiful. So, Abhayji, who has influenced you or mentored you uh, personally and professionally, and what key learnings did you derive from those interactions? देखिए, एक्चुअली क्या हो गया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो चेंज होती गई। तो मेरे मेंटर्स भी ना चेंज होते गए। तो पहले मैं डोमेस्टिक मेंटालिटी में था, और अचानक ही मैं यूनिकेम में गया, और वहाँ पर क्या हुआ कि मिस्टर एनके जुनेजा मिले मेरे को। तो मेरे को लगा यार, रेगुलेटेड प्लांट में जाने का अपना एक अलग चीज़ है। तो वहाँ पर रेगुलेटरी प्लांट में क्या होना कि वहाँ की मेंटरशिप अगर कुछ भी अगर मैंने ली है, तो वो एनके जुनेजा साहब से ली। उसके बाद में हुआ क्या है कि आई ग्रेजुएटेड लाइक मेरे टाइम पे, एंड आई एम टॉकिंग समथिंग समवेयर अराउंड आई वुड से 1996-97 में मेरे को रेगुलेटेड प्लांट का एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया था। तो हम लोग बड़े चूजन वन हुआ करते थे कि भाई, क्योंकि रेनबैक्सी में क्या हो गया, जब फर्स्ट यूएसएफडीए ऑडिट क्लियर हुआ, तो जो लोग थे ना, सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में चले गए थे, और उन्होंने उनको यूएसएफडीए कराने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो ऐसे मेरे एनके जुनेजा साहब से इंटरेक्शन पहली बार हुआ। वहां से निकलने के बाद में मेरे को अगर कोई पहला सही मेंटर अगर कोई मिला, वो मिला मतलब कि इधर क्या नाम है अपना, ये सन फार्मा में। सन फार्मा में सुधीर भाई हुआ करते थे, एंड सुधीर भाई वाज माय सेकंड मेंटर। सुधीर भाई बोलते थे कि यार, ये सब ठीक है, रेगुलेटरी वोलेटरी ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में असली क्वालिटी आई क्या? And he was like more interested on building the real quality thing into my product, and उनका जो पैकिंग मशीन का जो ज्ञान था, या फिर जो उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज था, दैट ऑलवेज एक्साइटेड मी। तो उन्होंने मेरे को उधर की तरफ लेकर गया। वहां से जब मैं निकला, तो फिर जो थर्ड जो मेरे को मेंटर मिले, वो मिले मेरे को यूएसबी में। यूएसबी में जो मेरे जो दो लोग थे, who were from IIT. So my third mentor was Mr. Devratta Gupta, who was from IIT Kharagpur, and he was the person under whom I really understand what industry means and how to like start taking senior position role, because वो HUL में थे, कोक में थे, तो आप समझ लो कि हुज एंड हुज में थे वो। और उनसे फिर मेरे को कैसे चीज़ों को मैनेज करने का उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में उनके जो बॉस थे, मिस्टर ये प्रशांत तिवारी, ही वाज फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड एमआईटी। वो एक अलग लेवल के आदमी थे। उनसे मेरे को विजनरी थॉट्स काफी मिले कि मेरे ऐसा विजन होना चाहिए, अबे ये ऐसा होना चाहिए। तो आप देखिए, मेरा जो फोर्थ था, उनसे मैंने विजन सीखा। थर्ड से मेरे को सीनियर पोजीशन में कैसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए वो सीखा। सेकंड से सीखा कि प्रोडक्ट में क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कागजी से। यहाँ पर जो पहले मेंटर थे, उनसे मैंने कागज से कैसे रेगुलेशन में या रेगुलेटरी प्लांट में जाना है, ये सीखा। तो ये सीरीज ऑफ मेंटर मेरे को मिले, और भगवान की दया से
वो बोलते हैं ना कि अगर भगवान चाहते तो आपको खुद ही वो दर्शन देते, या ही विल क्रिएट अ सिचुएशन दैट यू गो एंड मीट द गॉड। ये मेरे को बिल्कुल सही सीक्वेंस में मिले। Wow, beautiful, beautiful. Okay. So Abhay ji, uh, start conversation में सर कि you want to give back. So आप social impact के लिए क्या activities या कोई any NGO which is very particular and why? अ, अ, मैं आपको ना क्या हुआ कि आप हमारा जो सीएसआर डिपार्टमेंट है, तो दैट सीएसआर डिपार्टमेंट था, तो द मैनकाइंड वाज लाइक, उनका सीएसआर एक्टिविटी डे वन से था, करेक्ट। और बाद में मैंने एक काम किया, एंड द मैनेजमेंट वाज आल्सो वेरी वेरी लिसनिंग टू माय प्रपोजल। तो मैंने बोला ना, आप ये मत करो, आप है ना, आप ऐसे सिंपल पैसे मत दो, आप स्किल्स डेवलप करने में इन्वेस्ट करो। आप ऐसे इन्वेस्ट करो कि भाई किसी का लाइफ इम्प्रूव हो, उधर हम लोग इम्प्रूव करें। और हम लोग ना ये मछली खिलाना बंद करके हम लोग को ये करना चाहिए कि मछली पकड़ना सिखाना है इनको। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट सोशल इम्पैक्ट हो। So that was the good part which we are doing at Mankind. So हम लोग ने फिर फार्मर्स को ही पकड़ लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। वहाँ पर एक एक हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स वहाँ पर रन करते हैं, सो डैट कि ये अपना कल्ट, हमसे कोई फार्मर से रिलेटेड ही नहीं है, वो अपना अपना कैसे वो अपना एजुकेट करते हैं और ये करते हैं। दूसरा जो मेरे को लगता है, जो मैं पर्सनल लेवल पे करता हूँ, उसमें मैं सिर्फ दो ही काम करता हूँ। और दो काम में क्या होता है कि अ, एक तो मेरे को लगता है कि जो भी मेरी लर्निंग्स है वो मैं स्टोरीज के माध्यम से सैटरडे सॉरी संडेज को लिखता हूँ। और बाकी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को पहले लिखता था सप्लाई चेन पे, कि ये कुछ कुछ भ्रांतियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, वी शुड इम्प्रूव ऑन दैट। एक तो वो लिखता हूँ। और बाकी अगर सोशली करने का है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस एक काम जरूर करता हूँ कि एक बार मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी क्योंकि मेरे को ट्रे टाइमली नहीं मिला था। तो जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो जितने ट्रे होते हैं ना, उसको बिन करके जो है सिक्योरिटी पे वापस रख देता हूँ कि भाई अगली की फ्लाइट ना छूटे। So, इतना छोटा सा ही काम करता हूँ, लेकिन करता जरूर हूँ। तो कभी कभी एक सिक्योरिटी वाले ने बोला, आप ये क्यों करते हो? बोला, मेरी एक बार फ्लाइट मिस हो गई थी, मेरे को ट्रे टाइमली नहीं मिला था। एटलीस्ट मेरे को लगता है कि किसी एक की भी अगर फ्लाइट मतलब मिल गई तो आई एम लाइक गुड। ट्रे का काम जरूर करता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ। और मेरी मेरी ये सब भावनाओं को देख करके जो हमारे यहाँ पर जो सीएसआर के लोग हैं, दे ऑलवेज कम टू मी एंड सीख किया, हमको ऐसा ऐसा आया है, needed. ऐसा प्रपोजल आया कि व्हाट प्रपोजल एंड हाउ टू एलोकेट द बजट। सो दे लिसन मी अ लॉट, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एंड somehow we are like trying to teach them how to catch fish rather than feeding them with the fish. Beautiful. Okay. मेरे लास्ट टू विल बी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए, गूगली भी रहेंगे. व्हाट लेगेसी वुड यू लाइक टू लीव बिहाइंड? मेंटरशिप, यू हैव टू लाइक मेंटर, यू हैव टू इम्प्रूव। देखिए मेरा क्या पॉइंट है, भारत क्यों ट्रेजेक्ट्री पे ग्रो कर रहा है? क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे संतान हमसे बेहतर हो, राइट। और मैं बोलता हूँ कि मेरे संतान, मेरे एम्प्लॉयज भी मेरे संतान है, और मैं यही टीचिंग उनको देता हूँ कि अगर आपकी एम्प्लॉय आपसे बेहतर है, आपका कभी भी जो है डेवलपमेंट रुकेगा नहीं, आपकी कभी भी ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो आई वॉन्ट माई पीपल टू बी बेटर देन मी, एंड फॉर दैट मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, वो क्यों फ्लैट है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे उनसे बेहतर हों, या फिर जो उनके एम्प्लॉयज उनसे बेहतर हों। Wow. Last question. Describe Abeji in one line, which is a googly one. I'm a very, I would say, a very simple, honest, direct person. Beautiful. Let's have some fun, Abeji. हाँ जी। The rapid fire round. Your go-to comfort food. सॉरी। आपका comfort food. कंफर्ट फूड मेरा दाल और चावल ही है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। Wow.
One word that describes you at work. Passionate. A quote that resonates with you every day. Be better than yesterday. Wow. आपका favorite color? Blue. Uh, आपका favorite song? Favorite song. I am like. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल. Yes. Beautiful. Best piece of advice received. Best piece of advice. Advice received. Uh, I would say uh, start focusing on your health, because like I was a workaholic and somebody came to me and told me that you can start focusing on your health, because if you want to like work long, you should start focusing on your health. And that was a turning point where I started going to gym and started running. Wow, beautiful. आगरा का favorite ये dessert, sweet ये dish. पेठा है साहब, पेठा. Wow. चाय और कॉफी आपको रिजुवेट करने के लिए. I'm a chai person, not a very coffee person, because in coffee I like only filter coffee, which is very difficult to find in North. So I'm a Yeah. pakka chai person. Okay, let's read it. Yeah. Same. Yeah. आपने बहुत बढ़िया किए. और ये आपकी बुक निश मार्केटिंग ऑटोग्राफ करके आपको मिलेंगे सर. Thank सो you so much. फ्रेंड्स, इट वाज अ लवली ह्यूमरस एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन अभय जी के साथ में हमने की है. हिज 35 इयर्स की जर्नी हमने 1 घंटे में इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है. सो एनीवन हु वांट्स टू एंटर द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, दिस इज एपिसोड यू शुड वॉच फॉर. एज अभय जी ने इसलिए बताया कि भाई दिस इज द ग्रोथ फॉर ट्रैजेक्टरी. करियर का ग्रोथ आपको चाहिए तो ऑपरेशन में आइए. So watch this episode, lot of insights, leadership skills, how to develop Lean Six Sigma, then this helicopter ka viewpoint ki, to monitor, not to control. So many keywords उन्होंने अपने तरीके से हमें शेयर किए and हिंदी इंग्लिश में. But I love the conversation, which this episode is very memorable. This is my second episode, अभय जी, जो मैंने इंग्लिश में किया हूँ. One अरे is यार, नहीं वो एक्चुअली भी ना, अपना केमिकल दिल फील्ड से से है. मिला तो हिंदी में ही आता है, दिल से वो हिंदी भी में ही आता केमिकल है. फील्ड से है. ही इज अपना ये लीगल हेड देवेंद्र जोशी जी. उन्होंने उसका रिक्वेस्ट आया कि आपका व्हाट्सएप पे आ गया था उनका कॉन्वर्सेशन के पहले ही उन्होंने रिक्वेस्ट डाले कि भाई मैं इंग्लिश में ये बात करना चाहूँगा, मुझे क्वेश्चंस को भी इंग्लिश में हिंदी में करना. तो सो दीज 2 एपिसोड्स विल बी कि भाई आई कुड, मैंने अपने आप को क्या बोलते हैं कि ट्रेन करके एंड अडॉप्ट कर लिया according to थैंक यू सो speaker मच. to make it थैंक यू फॉर memorable. एक्टिवेटिंग. Because थैंक यू see, फॉर see, एक्टिवेटिंग. coffee is all about, the show is all about हमारा क्या है, change maker, memory maker and smiles for lifetime. So this is what मैंने अब 1 घंटे में देखा कि we both were having candid conversation over a cup of coffee. तो ये था. So friends, if you like to be, there are over 350 plus episodes with different coffee speakers, subject experts. Watch this episode, get inspired, and that will really be, they're all change makers in their journeys. And if you want to be invited, like Abhayji, visit our LinkedIn page, the Emerging India Forum, or our website, theemergingindiaforum.com. Fill in the form, DM, a team will happily invite you to have coffee conversation. So take care. Look forward to another inspiring conversations and get your, in any language, if you want to be covered, I can do in English, Hindi, Gujarati, and Marathi. Little. So, yes. Yeah. So Okay. thank you, Amirji. Thank you so much.